बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 22.1 and ORDS 21.4 with database 21C Express Edition pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 22.1 और ORDS 21.4 को डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन प्लगएबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। फर्स्ट वी विल क्रिएट फोल्डर इन सी ड्राइव विद द नेम 21C XE अंडरस्कोर 22.1। सबसे पहले हम सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 21C XE अंडरस्कोर 22.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के बिलतरतीब। And under this folder we further create two folders with the name DB and ORDS respectively. Extract Oracle Database 21C XE। एक्सट्रैक्ट करेंगे Oracle Database 21C को। DB के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है, extract Oracle Database 21C in DB folder which we have just created. Extract ORDS 21.4 in ORDS folder, so we do not need to copy and paste ORDS folder. ORDS 21.4 को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर। ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है, तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable file of Apex 22.1 is look like this। Oracle Apex 22.1 की जो डाउनलोडेबल फाइल है वो कुछ इस तरह की है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 21C XE अंडरस्कोर 22.1 के फोल्डर के अंदर, तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। Extract this Apex 22.1 file in 21C XE underscore 22.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder. The downloadable link of all softwares are available. Furthermore, we have already downloaded तमाम सॉफ्टवेयर्स की डाउनलोडेबल लिंक जो है वो मौजूद है। अलबत्ता हमने उनको पहले ही डाउनलोड कर लिया है। We have already downloaded all these softwares. हमने इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लिया है। अलबत्ता आप इन लिंक्स के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। However, you people can download all the software through these links. The Java version which we are using is Java 8 Update 211। जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 Update 211 है।
Before installing Oracle Database 21c Express Edition, we have to uninstall any other Oracle Database Express Edition or other database with the set exe from our system. Furthermore, this installation will use set exe for its database creation. Set other than exe will not allowed. Oracle Database 21c Express Edition को इंस्टॉल करने से पहले हमें तसल्ली कर लें कि हमारे पास कोई और दूसरा Oracle का डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन नहीं है या कोई और दूसरा डेटाबेस जिसकी सेट exe है वो भी नहीं है, क्योंकि ये जो इंस्टॉलेशन है ये exe को जो है वो डेटाबेस की क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करेगा। exe के अलावा कोई और सेट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Check on I accept the terms in the license agreement review button, hit next button, I accept the terms in the license agreement review button, फिर चेक लगाएंगे और next का बटन दबाएंगे। Define installation path while hitting change button, installation का पता देंगे change का बटन दबा के। Hit next button, next का बटन दबाएंगे। Provide password and confirm password for sys system and PDB admin from your choice, hit next button। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे sys system PDB, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे sys system और PDB admin के लिए अपनी मर्जी से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 21c Express Edition has installed, hit finish button, Oracle Database 21c Express Edition इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का बटन दबा दें। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command, connect with sysdba, कनेक्ट होंगे sysdba से। Now we will check a pluggable database status whether it is in read write mode or not. If it is in read write mode, then we will save its status and then move forward. If not, then we have to change its status into read write mode first and then मूव फॉरवर्ड। अभी हम प्लगेबल डेटाबेस का स्टेटस चेक कर रहे हैं कि वो रीड राइट मोड में है या नहीं है। अगर वो रीड राइट मोड में होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो रीड राइट मोड में नहीं होगा तो पहले हम उसको रीड राइट मोड में लेके आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रीड राइट मोड में है, इट इज इन रीड राइट मोड। Now we will run this command. We run this command before every Apex script to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with a pluggable database, then we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first and then run Apex script. While connecting with a pluggable database, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with sysuser again. शो PDBS की कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया।
अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा से इसके यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा। नाउ वी विल इंस्टॉल एपेक्स बाय रनिंग दिस कमांड। अब हम एपेक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं ये कमांड चला के। Oracle Apex 22.1 has installed। Oracle Apex 22.1 जो है इंस्टॉल हो चुका है। Now we will run this command। User will be admin, provide email and password from your choice। अब हम ये कमांड चलाएंगे। यूजर जो है वो एडमिन रहेगा, ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। Now we will run this command। Now we will run this command। Provide password for Apex listener and Apex Stress public user which will be Oracle in lower case। अब हम ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex Stress public user को, जो कि Oracle रहेगा छोटे हरफों में। एग्जिट दिस कमांड फॉर्म। इस कमांड फॉर्म को बंद कर दें। ओपन न्यू कमांड फॉर्म विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। नया कमांड फॉर्म खोलने एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। वहां जाए जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है एंड रीच वेयर ORDS फोल्डर इज अवेलेबल। वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएं। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर ये कमांड चलाएंगे। Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS। अब हम कॉन्फ़िगरेशन का पता देंगे जहां पे हम ORDS को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। Enter, enter, enter। If your port is 1521 then hit enter button। If your port is different then define your port and hit enter button। अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। To find your port, navigate to Oracle Aura DB21 Home 1। Expand it। अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle Aura DB21 Home 1 पे जाएंगे, उसको खोल लेंगे। कम टू नेट मैनेजर, ओपन इट। नेट मैनेजर पे आएंगे, उसको खोल लेंगे।
एंटर, प्रोवाइड योर प्लगेबल डेटाबेस नेम, अपना प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे, एंटर, प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड विच विल बी ऑरिकल इन लोअर केस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे जो कि ऑरिकल रहेगा छोटे हरफों में। Administrator username will be says provide password and confirm password which you provide during Oracle database installation. Administrator username says रहेगा, पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे हम वो जो हमने Oracle database के इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। एंटर, 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 प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड विच विल बी ऑरिकल इन लोअर केस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे जो कि ऑरिकल रहेगा छोटे हरफों में। एंटर, प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर एपेक्स लिसनर एंड एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर विच विल बी ऑरिकल इन लोअर केस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे एपेक्स लिसनर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूजर को जो कि ऑरिकल रहेगा छोटे हरफों में। एंटर, कॉपी इमेजेस फोल्डर from the Apex installation folder, कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको यहाँ चस्पा करेंगे। एंटर, प्रोवाइड अ पाथ टू Apex static resource location टेल इमेजेस फोल्डर, Apex static resource location को पता देंगे इमेजेस के फोल्डर तक का। Enter, define port from your choice or leave it as it is, आप पोर्ट दे दें अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें। When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 22.1. Remember, do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 22.1. However, we can reopen it as well. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 22.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोल सकते हैं। Oracle Apex 22.1 and ORDS 21.4 with Database 21C Express Edition pluggable as installed in Windows 10. Oracle Apex 22.1 और ORDS 21.4 Database 21C Express Edition pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।